آداب سے میں ہوں صفی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست کی تقسیم کے خلاف سیکریٹریٹ میں سیما آندھرا ملازمین نے کان میں پھول لگا کر کیا احتجاج۔ حیدرآباد سے متعلق مجلس کے موقف کی KTR نے کی حمایت، کہا شہر کو مرکز کے زیر انتظام ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ریاست کی تقسیم کے خلاف گنٹور میں وجے اماں کی بھوک ہڑتال شروع۔ اور رکن راجیہ سبھا ہنمنت راؤ نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے پر کیا حیرت کا اظہار، دگ وجے سنگھ نے بھی کی حملے کی مذمت۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست کی تقسیم کے اعلان کے خلاف سیکریٹریٹ میں سیما آندھرا ملازمین کا احتجاج جاری ہے۔ ملازمین نے پیر کو بھی اپنی خدمات کا بائیکاٹ کیا۔ ملازمین نے کانوں میں پھول لگا کر احتجاج کیا، جبکہ بعض ملازمین نے کانگریس کے اعلی قائدین اور وزراء کا حلیہ بنا کر تمثیلی احتجاج کیا۔ اس موقع پر احتجاجی ملازمین حیدرآباد پر ہمارا حق ہے کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس دوران APNGOs کے صدر اشوک بابو نے کہا کہ 1 سپٹمبر سے ان کے احتجاج میں مزید شدت پیدا کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں ایک جلسہ بھی منعقد کیا جائے گا اور کہا کہ حیدرآباد کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ وزیر بلدیہ نظم و نسق مہیدر ریڈی نے ہڑتالی ملازمین سے اظہار یگانگت کیا ہے۔ سیما آندھرا میں ریاست کی تقسیم کے اعلان کے خلاف جاری احتجاج کا MSET کونسلنگ پر اثر پڑا ہے۔ 1-2 مقامات کو چھوڑ کر MSET کونسلنگ نہیں ہو پائی ہے، جس سے طلباء کو فکر مند دیکھا گیا ہے۔ کئی مراکز پر کونسلنگ کے عملے نے اپنی خدمات کا بائیکاٹ کیا، جبکہ جہاں پر کونسلنگ کا آغاز ہوا تھا وہاں پر احتجاجیوں نے کونسلنگ کو رکوا دیا۔ گنٹور، وجے واڑہ، وشاکھاپٹنم، اننت پور، نیلور، کرنول اور شریکاکولم میں بھی MSET کونسلنگ میں رکاوٹ پیدا کی گئی۔ پولیس نے کئی مقامات پر احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر حیدرآباد میں کونسلنگ پرامن طور پر منعقد ہوئی۔ TRS رکن اسمبلی KTR نے حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنائے جانے کی کوششوں پر مجلس کے سخت موقف کی حمایت کی ہے۔ ودیوت سودھا میں تلنگانہ ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے بغیر تلنگانہ سر کے بغیر دھڑ کے مترادف ہوگا اور اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہفتے کو خلوت گراؤنڈز میں کی گئی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ TRS بیرسٹر اویسی کے موقف کی حمایت کرتی ہے اور ایسی کسی بھی طرح کی کوشش کو کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا۔ KTR نے اس سے پہلے ودیوت سودھا میں احتجاج کر رہے تلنگانہ ملازمین سے اظہار یگانگت کیا۔ احتجاج کے دوران اس وقت حالات کشیدہ ہو گئے جب سیما آندھرا کے ملازمین نے بھی احتجاج کیا۔ اس موقع پر دونوں طرف سے نعرہ بازی کی گئی۔ سیما آندھرا کے ملازمین پولیس سے بھی الجھ پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تلنگانہ ملازمین کو احتجاج کی اجازت دی گئی ہے تو انہیں کیوں احتجاج سے روکا جا رہا ہے۔ سیما آندھرا کے ملازمین سے وشال آندھرا کے لیڈر P پربھاکر نے اظہار یگانگت کیا۔ دونوں علاقوں کے ملازمین کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر پولیس کے زائد دستوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ الیکٹرانک میڈیا بالخصوص سیما آندھرا کے چینلز کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے نارا چندرابابو نائیڈو نے ریاست کی تقسیم سے پیدا صورتحال پر اپنے موقف کی وضاحت کی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ صدر تلگو دیشم کی جانب سے طلب کی گئی اس خصوصی ملاقات کے دوران تلنگانہ کے اہم چینلز کے نمائندے نظر نہیں آئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چندرابابو نائیڈو میڈیا کے ذریعے سیما آندھرا کے عوام کو اپنا پیام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں نے بھی چندرابابو نائیڈو کی اس کوشش میں مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے۔ میڈیا کے نمائندوں نے چندرابابو نائیڈو کو عوام کے بیچ جا کر اس حساس مسئلے پر عوام کے شک و شبہات کو دور کرنے کا مشورہ دیا۔
इसके अलावा हैदराबाद को लेकर जारी कयास आराइयों पर भी मीडिया ने सदर तेलुगुदेशम को मरकज को एक रिपोर्ट रवाना करने का भी मशवरा दिया है। इसके अलावा हैदराबाद और दिगर शोबेजात की तकसीम से मुतालिक वजाहत तलब करने की सदर तेलुगुदेशम से दरख्वास्त की गई। मीडिया से बातचीत उनके मशवरों और तजावीज़ की समाअत के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की उन्होंने अपने लिए नहीं की। मरकजी हुकूमत को रियासत को मुत्तहद रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तमाम इलाकों के साथ मसावी इंसाफ किया जाना चाहिए। गुंटूर में रियासत की तकसीम के खिलाफ अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल के पहले दिन अवाम से खिताब करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर वाईएस विजयलक्ष्मी ने यह बात कही। विजयलक्ष्मी की भूख हड़ताल के आगाज पर हजारों अफराद मौजूद थे। विजयलक्ष्मी ने अपने खिताब में कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ वोट और सीट के लिए कांग्रेस ने रियासत की तकसीम का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर एक बाप अपनी जायदाद की तकसीम करता है तो अपने दोनों बेटों को मसावी हक देता है, लेकिन यहां कांग्रेस ने हैदराबाद एक को दे दिया और दूसरे को यहां से चले जाने और नया घर बनाने के लिए कह दिया। ये कहां का इंसाफ है? इस मौके पर उन्होंने शुरुका से सवाल किया कि अगर ऐसा उनके खानदान में होता है तो वो क्या करेंगे। विजयलक्ष्मी ने कहा कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी खुद जेल में भूख हड़ताल में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन हफ्ते में उनसे होने वाली मुलाकात के रोक दिए जाने और जगन को दूसरी जेल मुंतकिल किए जाने के खौफ से उन्होंने जगन को मना किया। विजयलक्ष्मी ने बताया कि उन्होंने जगन से कहा कि वो उनकी तरफ से भूख हड़ताल पर बैठेंगी। మరి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో కూడా 3 రాష్ట్రాలు ఇచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్రాతిపదిక అనేది ఉండేది। వాళ్ళు కూడా అసెంబ్లీలో ఏకగ్రీవ తీర్మానాలతో చేసే మరి ఆ రోజు 3 రాష్ట్రాలు కూడా ఛత్తీస్గఢ్ గాని జార్ఖండ్ గాని ఉత్తరాఖండ్ గాని ఏర్పరచడం జరిగింది బీజేపీ ప్రభుత్వంలో కూడా। నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా ఈ రాష్ట్రాలు పునర్విభజన చేయాలంటే మరి ఫజల్ ఆలీ నాయకత్వంలో ఆ రోజు ఆ మొదటి ఎస్ఆర్సీ ప్రకారం భాషా ప్రయుక్తంగా తీసుకోవాలని చెప్పి ఆ రోజు ఎస్ఆర్సీ చెప్పడం జరిగింది। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले रियासती वजीर शैलजा जनात ने कहा है कि मुत्तहिदा रियासत के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा कायदीन और अवाम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और हमारे कदम पीछे नहीं हटाएंगे। उन्होंने बताया कि मंगल को सीमा आंध्रा कायदीन एंटोनी कमेटी से नुमाइंदगी करेंगे और उन्हें हक़ाइक़ से वाकिफ करवाया जाएगा। शैलजा जनात ने कहा कि वह हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि दोनों इलाकों में पाई जाने वाली अबतर सूरत-ए-हाल के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एहसास जाहिर किया है कि अचानक लिए जाने वाले फैसले हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में फौरी तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए कहा कि बीजेपी इसकी तायद करेगी। उनका कहना था कि कांग्रेस अब तेलंगाना की तश्कील के फैसले से पीछे नहीं हट सकती और इसमें ताखीर करना भी मुनासिब नहीं है। संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने दावा किया है कि वो और टीआरएस के सरबराह मुत्तहिदा रियासत के हामी हैं। मीडिया से बात करते हुए गवर्नमेंट व्हिप ने इल्जाम लगाया कि केसीआर अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील नहीं चाहते थे, क्योंकि तेलंगाना की तश्कील के साथ ही उनका सियासी वजूद खत्म होने का उन्हें खदशा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दोनों इलाकों में तहरीक के नाम पर तलबा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर तलबा के मुस्तकबिल का जिम्मेदार कौन है। जग्गारेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कई तलबा ने अपनी जानें गंवाई हैं। उन्होंने एंटोनी कमेटी से मुतालबा किया है कि काकतिया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी का भी वो दौरा करते हुए हक़ाइक़ का पता चला है। ये पूछे जाने पर कि सीमा आंध्रा के दौरे पर उन्होंने क्यों जोर नहीं दिया है, तो उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा कायदीन को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाना चाहिए। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि मुकदमा आयद किए जाने से वो खौफजदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में भी वो कई मुकदमात का सामना कर चुके हैं और अवाम के लिए उनकी जिदोजहद जारी रहेगी। हनुमंत राव ने वजाहत की कि तिरुपति में उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं तलब की थी, सिर्फ मीडिया की जबरदस्ती पर ही उन्होंने बात की थी। हनुमंत राव ने कहा कि तिरुपति में हमला मुझ पर हुआ है और मुकदमा भी मुझ पर ही आयद किया गया है, जो कि 22 से अफसोस है। నాతోడు మాట్లాడడం నిన్న నీపై దాడి పాల్పడిన వారి మీద కేసు పెడతాము లేకపోతే అంటే నేను అన్నాను ఎవరు చేసిరంటే ఇది ఎవరు ఉంటారు కేవలం మొదటి నుంచి కూడా
వైఎస్ఆర్ పార్టీని డైరెక్ట్ గా డే 1 ఆన్వర్డ్స్ నేను క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి వాళ్ళే దీనికి అటాక్ అని చెప్పారు. అయితే ముఖ్యమంత్రి గారైనా లేదు ఇది తప్పు, వాళ్ళ మీద కేసు పెడతా అంటే నేను చాలా క్లియర్ గా చెప్పిన. డీజీపీ గారు మాట్లాడితే అదే చెప్పి, కానీ ఇవాళ పేపర్లో చూసే వరకు ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఒక కేసు వాళ్ళ మీద, ఒక కేసు నా మీద. वाह। रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने तिरुपति में वी हनुमंतराव के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जमहूरियत में हर किसी को बोलने का हक हासिल है, लेकिन इस तरह का वाक़या काबिल मजम्मत है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना वालों का नहीं बल्कि रियासत के अवाम का दिल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस अरकान का सिर्फ हैदराबाद को तेलंगाना का दिल करार देना मुनासिब नहीं है। तुलसी रेड्डी ने कहा कि 430 साल हैदराबाद की तारीख में तेलंगाना का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने बताया कि गोलकुंडा मुगल दौर और आसिफ जाही हुकूमत में भी हैदराबाद दारुल हुकूमत नहीं था। उन्होंने बताया कि हैदराबाद रियासत के वजूद में आने के बाद भी तेलंगाना का कोई जिक्र नहीं है। टीआरएस रुकन असेंबली केटीआर ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला के कैंप ऑफिस से सीमा आंध्रा में एहतजाज के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इंदिरा पार्क पर जेएसी के हड़ताल के पहले दिन खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि रियासत की तकसीम के 30 जुलाई को किए गए ऐलान के बाद कांग्रेस, तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला खुद को हैदराबादी कहते हैं, यहां तालीम हासिल करने और यहां की बिरयानी खाने का दावा करते हैं। अगर उन्हें हैदराबाद से प्यार है तो अलहदा तेलंगाना की तश्कील की हिमायत करनी चाहिए। केटीआर ने कहा कि वजीर आला को हैदराबाद में कैंटीन चलाने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के साथ ही तेलंगाना को कबूल किया जाएगा। इस मौके पर जेएसी के अलावा टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। टीआरएस कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के साथ मिलकर हुक्मरान कांग्रेस इंतखाबी फायदा उठाना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर जी मुद्दु कृष्णमा नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में खौफ पाया जाता है कि तेलुगुदेशम मजबूत हो रही है और आइंदा इंतखाबात में इख्तिदार पर आने वाली है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू अगर 25 अरकान पार्लियामेंट को लेकर दिल्ली जाते हैं तो कांग्रेस का मरकज में इख्तिदार पर आने का ख्वाब टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए टीआरएस कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के साथ मुफाहमत करते हुए तेलुगुदेशम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के ऐलान के बाद तीनों जमातें ड्रामाबाजी कर रही हैं। తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారానికి వచ్చేస్తుంది। తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్, అదేమో వైఎస్ఆర్సీపీ, సీమాంధ్రలో వైఎస్ఆర్సీపీ కాంగ్రెస్ లేదు, కాంగ్రెస్ అయిపోయింది। రెండు ప్రాంతాల్లో ఉండేది ఇప్పుడు ఆడ తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ను కలుపుకొని టీఆర్ఎస్ తో పొత్తు పెట్టుకొని టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పేరే, ఇక్కడేమో సీమాంధ్రలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్। कांग्रेस के सीनियर रुकन कौंसिल पी वेंकट राव ने कहा कि रियासत की तकसीम के फैसले पर सिर्फ सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस पार्टी का यह फैसला है और कहा कि रियासत में उस वक्त हालात ठीक नहीं है और मौजूदा सूरत हाल से रियासत को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से अपने फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर के नीचे बल्दी हुक्काम की जानिब से तोसी के काम को कायदे मजलिस की हिदायत पर रोक दिया गया। फ्लाईओवर के नीचे पौधे लगाए जाने के लिए काम की गर्ज से वहां पर पार्किंग इलाके को खत्म कर दिया गया था, जिस पर मुकामी लारी व ट्राली ड्राइवर्स ने दारुसलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन से नुमाइंदगी की। इतला मिलने पर कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेयर जीएचएमसी मोहम्मद माजिद हुसैन से बात करते हुए काम को रुकवाने की हिदायत दी। लारी और ट्रक ड्राइवर्स ने फौरी नुमाइंदगी करने पर कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है। ड्राइवर्स का कहना था कि फ्लाईओवर के नीचे वो अपनी लारियां और ट्रक पार्क करते हैं और यहीं पर उनका कारोबार होता है। अगर मजलिस की जानिब से बर वक्त नुमाइंदगी नहीं की जाती तो उन्हें नुकसान से दो चार होना पड़ सकता है। उधर अमीरपेट में ठेला बंदी रानों को हरासा किए जाने की शिकायत पर मजलिस की फौरी तवज्जो से मसले की यकसुई की गई, जिस पर दारुसलाम पहुंचकर अमीरपेट के ताजरीन की जानिब से मजलिसी कायदीन की गुलपोशी की गई। पुलिस मुलाजिमतों के लिए मुनक़दा तहरीरी इम्तिहान के नताइज के ऐलान में हो रही ताख़ीर पर उम्मीदवारों ने
दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन को हालत से वाकिफ करवाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि मजलिस की जानिब से कुली कुतुब शाह स्टेडियम में पुलिस मुलाजिमतों के लिए तरबियती कैंप मुनक़द किया गया था और तहरीरी इम्तिहान के लिए भी उन्हें माहिरीन की जानिब से तैयार करदा मवाद फराहम किया गया था। उन्होंने बताया कि क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को भी नताइज में हो रही ताख़ीर से वाकिफ करवाया गया है। पाशा कादरी ने बताया कि आइंदा एक हफ्ते में जिम्मेदार ओहदेदारों के साथ नुमाइंदगी करते हुए इस मसले की यकसुई की कोशिश की जाएगी। इससे पहले उम्मीदवारों ने नताइज में हो रही ताख़ीर के खिलाफ डीजीपी ऑफिस के पास धरना दिया। मुसलमानों के एक वफ्द ने वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा फिल्म के गाने में बिस्मिल्लाह के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज करते हुए कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा से शिकायत करके एक मकतूब हवाले किया है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा फिल्म में बिस्मिल्लाह और अल्लाह के नाम को गलत अंदाज में इस्तेमाल करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। इस फिल्म के गाने में नीम बरहना ख़वातीन मुतबरिक अल्फाज कहते हुए बताए गए हैं, जिसकी फिल्म साज यकता कपूर है। एहतजाजियों ने इस फिल्म से मुतनाज़ा गाने को निकालने का मुतालबा किया है। इस वाक़े से फिर एक बार मुसलमानों के जज्बात से खेला गया है, जबकि फिल्म साजों और गीतकारों को इस बात का अच्छा अंदाज़ा और तजुर्बा है कि ऐसी मुतनाज़ा फिल्में बनाने पर मुसलमानों के जज्बात भड़क उठेंगे। लेकिन हैरत सेंसर बोर्ड पर होती है, जिसने इस फिल्म को पास करके एक संगीन मसला पैदा कर दिया है। डीसीबी नॉर्थ जोन की टीम ने अगवा किए गए शेरख्वार बच्चे का पता चलाकर एक खातून को गुंटूर से गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक श्री राम नगर की रहने वाली स्वमत्रा को जुमा के दिन गांधी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहां उसे इतवार की दोपहर एक बच्चा तवल्लुद हुआ। हॉस्पिटल में रहने वाली एक खातून ने उसके माँ बाप से दोस्ती के बहाने बच्चा लेकर फरार हो गई। लड़के के माँ बाप ने दवाखाने में मैरी को तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली, जिस पर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस चंद घंटों के अंदर मगविया खातून को गुंटूर से गिरफ्तार करते हुए बच्चे को बाहिफाजत हासिल कर लिया। पुलिस इस वाक़े की मजीद तहकीकात कर रही है। सुमित्रा वाइफ ऑफ मनोगर ఆవిడ వచ్చి గాంధీ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయింది. వీళ్ళు భార్యాభర్తలు ఇద్దరిది కూడా లవ్ మ్యారేజ్, దానివల్ల లేడీ అటెండెన్స్ ఎవరు లేదు. సో భార్యకి లేడీ అటెండెన్స్ ఎవరు లేదు కాబట్టి ఈ అమ్మాయి పరిచయం చేసుకొని హెల్ప్ చేసింది ఒకరోజు ఫుల్. బేబీ బాయ్ పుట్టిన తర్వాత కూడా చూసుకున్నది, నమ్మకం కలిగించింది. తర్వాత ఆమె సండే రోజు మార్నింగ్ 6 o'clock చెప్పకుండా బేబీ బాయ్ని తీసుకెళ్ళిపోయింది. సో ఇమీడియట్గా మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్ పోస్ట్కి వచ్చినాక వెంటనే టీమ్స్ ఫామ్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని బస్ స్టేషన్స్, రైల్వే స్టేషన్ చెక్ చేయగా మనకి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో ఫుటేజ్ దొరికింది. मलेपल्ली के इलाके में कार की टक्कर से 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पीर की दोपहर स्कॉर्पियो कार ब्रेक फेल होने की वजह से उसने एक ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल सवार और एक रास्ता चलने वाली खातून को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ऑटो ड्राइवर अजहर, मोटरसाइकिल सवार जयपाल और गंगा नामी एक खातून जख्मी हो गए। हबीबनगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां शदीद जख्मी जयपाल की हालत नाजुक बताई जाती है। मलकपेट के इलाके में ऑटो रिक्शा उलटने से 6 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब ऑटो रिक्शा का अचानक ब्रेक फेल हो जाने से वो बेकाबू हो गया और मेट्रो रेल के एक कॉलम से टकरा गया। इस वाक़े में ऑटो रिक्शा में सवार 6 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें खवातीन के अलावा एक शख्स महताब खान सवार था, जो मुशीराबाद के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस एक केस दर्ज करते हुए जख्मी अफराद को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जहां महताब खान की हालत नाजुक बताई जाती है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मोटरसाइकिलों के एक आदी सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कोतापेट के रहने वाले 24 साला रेहान खान उर्फ गुलाम हुसैन खान को यराकुंटा बस स्टॉप से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल के मालिक मोहम्मद कलीम अपनी मोटरसाइकिल एक होटल के पास पार्क करके किसी काम से गए हुए थे। जब वो वापस मोटरसाइकिल लेने आए तो वो गायब थी।
ओवैसी हिल्स के इलाके में एक शख्स ने अपनी सास की हरासानी की वजह से खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक दानमा झोपड़ी के इलाके के रहने वाले 25 साला मोहम्मद अली सिद्दीक ने अपनी सास नजमा उर्फ नूर जहां से खौफजदा होकर इतवार और पीर की दरमियानी शब जहरीली दवा पी ली। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े की शिवरामपल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने मुतासिरा अफराद को पीर के दिन रुजू होने का मशवरा दिया है। कुकटपल्ली निजामपेट के इलाके में 2 अफराद ने एक शख्स का रकम से भरा बैग खींचकर फरार होने की कोशिश की। इंस्पेक्टर कुकटपल्ली पुलिस ने मीडिया को बताया कि इतवार और पीर की दरमियानी शब एक होटल का कैशियर चंदू अपनी होटल बंद करके जा रहा था कि 2 नामालूम अफराद उसका ताक़ुब करते हुए बैग छीनने की कोशिश की, जिसमें 45,000 रुपये रखे थे। चंदू और रहजनों के दरमियान कुछ देर के लिए खींचतान हो गई, जिस पर दोनों रहजनों ने एक तफंचे से चंदू के हाथ पर गोली चला दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए चंदू को निम्स दवाखाना मुंतकिल करके नामालूम अफराद की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत की तकसीम के खिलाफ सेक्रेटरीट में सीमा आंध्रा मुलाजिमिन ने कान में फूल लगाकर किया एहतजाज। हैदराबाद से मुतालिक मजलिस के मौक़िफ़ की केटीआर ने की हिमायत। कहा, शहर को मरकज के ज़ेर इंतजाम हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। रियासत की तकसीम के खिलाफ गुंटूर में विजय अम्मा की भूख हड़ताल शुरू। और रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर किया हैरत का इजहार। दिग्विजय सिंह ने भी की हमले की मजम्मत। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।